اسے اس سسٹ کے لیے کینسر کا ٹیسٹ لکھ دیا، کیونکہ یہ سب کچھ جب کیا اس کا رپورٹ ایک بار نہیں 5 سے 6 بار اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ چیز کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز نے ہر طرف سے مجھے یہی کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہو بھی جائے گا تو دوبارہ آنے کے چانسز ہے، یا پھر یہ چھوٹا ہو سکتا ہے، یہ جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ڈاکٹرز نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے مینشن کیا تھا کہ جو بھی لڑکیاں، جو بھی گرلز پی سی او ڈی، پی سی او ایس، فائبرائڈ، اوویرین سسٹ، ان ساری چیزوں سے جوجھ رہی ہیں، ان میں مبتلا ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے میں کچھ ٹپس، کچھ وظائف اور ایک میریکل سٹوری بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ایک لڑکی کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہی بری طریقے سے پیش آیا تھا اور کس طرح سے اس کا یہ مسئلہ دور ہوا۔ یقین مانے جو بھی لڑکیاں اس میں مبتلا ہے، اس میں یہ بیماری اسے لگی ہے، وہ بہت جلدی نہیں جاتی ہے، بہت زیادہ ان چیزوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے انسان کو، جو لڑکیاں ہوتی ہے ان کو اپنی لائف میں بہت ساری نیگیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو ان میرڈ گرلز ہے ان کو ان وانٹیڈ ہیئرز دیکھنے پڑتے ہیں، ان کو جو ہے ان کا بیلی فیٹ بڑھ جاتا ہے، یا پھر ان کو فیس پہ پمپلز وغیرہ ہوتے ہیں۔ جو میرڈ ہے ان کو ان چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ساتھ میں ان کو انفرٹیلٹی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں اس سے پیش آتی ہیں اور وہ علاج کرا کر تھک چکی ہوتی ہیں۔ ان کو اس چیز سے جوجھتے ہوئے بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کی یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے بہت ساری بہنوں کو ایسے دیکھا ہے کہ میں جب ان چیزوں کے اگر ویڈیو سجیشن میں میرے پاس آئے تو میں ان کے صرف کمنٹس پڑھ کر دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ ان چیزوں میں پریشان ہیں اور ان کی پریشانیاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میرڈ گرلز ہیں ان کو اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ گھبرا جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک فیصلہ لیتی ہیں کہ چلو ہم آپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن جو ان میرڈ گرل ہے، اور چونکہ ہم مسلم کمیونٹی میں یہ چیز بہت اچھے سے جانتے ہیں، یا پھر نان مسلم کمیونٹی بھی ہو تو ان کو بھی یہ چیز بہت اچھے سے پتہ ہو کہ ان میرڈ گرل اگر کسی ایسی چیز کی آپریشن کی طرف جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے لوگوں کے دل میں بہت سارے متھ بیٹھ جاتی ہے، بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ ایسے میں نے اسٹوری اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے، اور اس لیے وہ ڈر سے آپریشن کرانا نہیں چاہتی، اور اس چیز سے وہ جلدی ٹھیک بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ ایلوپیتھک میڈیسن لے لے کر وہ پریشان ہے، لیکن ایسی جو ہے اس کو اس پریشانی سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک بہن کی، جس میں آپ کو پورا سن کر آپ کے دل میں یہ چیز یقین پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری ہو، ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، زمانے میں وہ چیز بہت بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک بندہ اس چیز سے جوجھ رہا ہے، لیکن کوئی بھی بیماری آتی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اس بات پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو ہم ایسی کیا بہت بڑی بڑی بیماریوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کی موت کا کارن بنتی ہے، لیکن یقین کریں کہ اگر اس بیماری کے کارن ہماری موت نہیں لکھی، یا پھر اگر کوئی ایسی بیماری ہمیں لگ گئی ہے جس کے بعد بھی ہمارے پاس 10 سال 15 سال زندگی بچی ہوئی ہے، تو ہم اس بیماری کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو بالکل حدیث سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، جو آپ اگر یقین کے ساتھ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دے، چاہے خود کے اوپر ہو یا کوئی ایسے مریض ہے ان کے اوپر پڑھ کر دم کرنا شروع کر دے، تو ان کی اگر موت نہیں ہے تو اس کو ایسی ہر بیماری سے شفا مل سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی یہ دعا مینشن کر رہی ہوں اسکرین پہ کہ اگر آپ پی سی او ڈی یا کسی بھی ایسی بیماری سے، اوویرین سسٹ ہو یا ایسی کوئی بھی بیماری ہو جو آپ کو لگ رہا ہے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ تھک چکے ہیں، آپ اس دعا کو پڑھ کر 7 بار دم کرنا شروع کریں، ایوری ڈے دم کرنا شروع کریں۔ اگر یقین آپ کے دل میں ہے، یقین کریں کہ آپ کو بیماری سے شفا ضرور ملے گی۔ اسی سے ریلیٹڈ میں یہ جو میریکل اسٹوری آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک بہن ہے، ان کی اسٹوری میرے سامنے آئی کہ ایک بار اچانک سے اس کے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہوا، مطلب ایک دم سے سیویئر پین کہتے ہیں نا، وہ پین ہوا اسے ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔
डॉक्टर ने उसका फ़ौरन ही अल्ट्रासाउंड किया। जब अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला जिस चीज़ के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसा ना कोई सिम्टम्स था, ना ही उसे ऐसे पहले इस चीज़ के बारे में कुछ पता था। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके ओवरी में एक बहुत बड़ा सा सिस्ट पड़ा हुआ है। ये सिस्ट के बारे में जब बात पता चलती है तो डॉक्टर्स ने उनको फिर कहा कि ठीक है, इसके लिए मेडिसिन वगैरह चलेंगे। कुछ दिन तो वो लोग इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लेते, क्योंकि वो सिर्फ सिस्ट समझ रहे होते हैं उसको। कुछ दिन और गुजरता है, वो डॉक्टर्स के पास, उसका पेन जो है वो हमेशा होता ही रहता था। वो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने उसे उस सिस्ट के लिए कैंसर का टेस्ट लिख दिया, क्योंकि ये सिस्ट का साइज अगर बड़ा हो जाता है या ये सिस्ट काफ़ी लंबे अरसे तक पड़ा रहता है तो ये फिर दूसरी बीमारी जो कैंसरस होती है उसमें कन्वर्ट हो सकता है ये। इसलिए डॉक्टर्स ने उसे, और वो लड़की ने जब उसे इस चीज़ के लिए कहा तब पूरे घर में टेंशन हो गई, क्योंकि एक तो वो लड़की अनमैरिड थी, दूसरी चीज़ है कि उसे इतना बड़ा टेस्ट करवाना है, तीसरी चीज़ है कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ऐसा कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसे फौरी तौर पे ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, ये रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। और अगर ऐसा टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी हमें इसे 3 मंथ्स के मेडिसिन के साथ रखना होगा। अगर 3 मंथ्स में इसका जो सिस्ट है वो चला गया तो सही है, वरना फिर इसे हर हाल में ऑपरेट करना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर वो लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गई, वो अपनी लाइफ को ऐसे समझने लग गई थी कि जैसे उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, क्योंकि इससे पहले उसकी इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं था। और जब ये चीज़ सामने आई है तो इसके साथ इतनी सारी परेशानियाँ आई है। तो उसने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर्स ने उसे टेस्ट लिखा। जब वो डॉक्टर्स के पास जाकर फिर इस टेस्ट को करवाती है, टेस्ट के रिपोर्ट्स जो है वो 3 दिन बाद आने होते हैं। 3 दिन तक वो लड़की अल्लाह से रो रो कर इतना मतलब इस्तगफार करती है, इतने ज़्यादा इस्तगफार करती है, रोती है, दुआएं करती है। और जब उसे पता होता है कि दुआएं कबूलियत का जो वक्त है, जुमा के दिन असर से मगरिब के बीच का वक्त, जुमा के दिन अजान से जो क्या कहते हैं मिंबर में जब इमाम आते हैं उसके बीच का वक्त, बारिश के वक्त, मतलब उसे इस 3 दिन में जो वक्त उसे पता होता है कि इसमें दुआएं कबूल होती है, उसने उस वक्त खूब इस्तगफार किया, खूब दुआएं की, खूब रो रो कर अल्लाह को मनाने की कोशिश की कि अल्लाह मेरा ये टेस्ट पॉजिटिव ना आए। खैर अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने उसकी सुनी। 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आया तो उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उसके रिपोर्ट में। लेकिन अभी भी डॉक्टर्स ने उसे 3 मंथ्स के मेडिसिन के साथ रखा और कहा कि 3 महीने बाद आपको चेकअप करवाना होगा। और डॉक्टर्स ने साथ ये भी उसे कहा था कि देखिए सिस्ट का साइज़ बड़ा है और जनरली ये चीज़ जो है वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, और अगर ऑपरेट करते हैं इसे तो ऑपरेशन के बाद ये दोबारा आने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोच कर चलनी है। खैर उस लड़की ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। उसके बाद उस लड़की ने वो दवाई मेडिसिन जो है वो लेना शुरू की, लेकिन उस दवाई से उसे कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह ताला से उसने दुआ की, मदद मांगी कि अल्लाह ताला मैं क्या करूं। और मतलब जितने लोगों से इस बारे में उसने बात की, सब ने लगभग, यहाँ तक कि उसने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस जो है वो सर्च की, उसमें भी बहुत सारे लोग, खैर वीडियोस तो बहुत तरह की होती है लेकिन लोगों के कमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं, कुछ कमेंट्स ही जो होते हैं वो फेक होते हैं। बहुत सारी गर्ल्स ने कहा कि मैंने ऑपरेट करवाया, मेरा फिर से आ गया, मुझे फिर से ये परेशानी हुई, मेरा तो दोबारा ऑपरेशन हुआ है, या मैंने एलोपैथिक मेडिसिन को बहुत लंबे टाइम तक खाया है, मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन मेरा जो सिस्ट है, जो पीसीओडी है, वो ठीक नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो लड़की और ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि अल्लाह ही हर बीमारी को देने वाला है और अल्लाह ही शिफा देने वाला है। उसने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। उसे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम होम्योपैथिक के पास जाओ, होम्योपैथिक का इसका बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन होम्योपैथिक में भी कुछ लोगों का उसने पॉजिटिव रिजल्ट देखा, कुछ लोगों का नेगेटिव रिजल्ट देखा। तो अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, पॉजिटिव वाले की तरफ ध्यान दे या फिर नेगेटिविटी जो है लोगों ने फैला रखी उसकी तरफ ध्यान दे। खैर उसने सोचा कि जब इतनी मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथिक भी सही। उसने होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया था। लेकिन उसे आखिर में अल्लाह ताला की इस बात पे मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है। फिर उसे ये दुआ किसी ने बताई
कि इस दुआ को 7 बार पढ़कर किसी भी कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, जितनी भी बुरी बीमारी हो, जितनी भी बड़ी बीमारी हो, ऐसी बीमारी हो जो बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं लेती है, लोग थक चुके हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर परेशान हैं, ऐसी बीमारियों से भी अल्लाह ताला शिफा देता है। फिर उसने इस दुआ को पढ़कर और सूरतुल फातिहा को पढ़कर खुद के ऊपर एवरी डे इस चीज़ को उसने मामूल बना लिया। इस टिप्स को आप ट्राई करें, इस वजीफा को आप ट्राई करें। उसने अपने ऊपर ये चीज़ पढ़ने का जो है वो मामूल बना लिया। एवरी डे वो पढ़कर इस चीज़ को अपने ऊपर दम किया करती थी। ये जो दुआ मैंने स्क्रीन पे लगाया था, आप उस दुआ को एवरी डे अपने ऊपर पढ़कर दम करें, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें और यकीन के साथ ज़रा सा भी शक्को सुबह आपके दिलो दिमाग में ना हो। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स कितनी नेगेटिविटी आपके माइंड में डाल रहे हैं, कुछ मत सोचिए। आप लोगों के साथ क्या हुआ कुछ मत सोचिए। आपका ईमान और आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे कैसा, आप इस बात पे अगर यकीन रखें तो सबसे पहली चीज़ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। दूसरी चीज़ है, शिफा अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। इस दुआ के साथ अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें और यकीन के साथ शिफा मांगें। इस्तगफार की कसरत करें। जो भी गुनाह है जिसके बदले या फिर जिस आजमाइश के बदले आपको ये चीज़ मिली है, जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है, अल्लाह ताला से इस आजमाइश को दूर करने के लिए इस्तगफार की कसरत करें। गुनाहों से माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से कसरत से और अपने आप को जो है मेंटेन रखें, डाइट मेंटेन करने की कोशिश करें और अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब आप किसी चीज़ में जब उलझते हैं ना तो अपने आप को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर ये बीमारी ठीक ना हुई तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज़ को सोचते हुए अपनी लाइफ में अपने डाइट को मेंटेन करें, योगा करें। योगा करना एक एक्सरसाइज जब आप करेंगे ना तो इससे बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करें, लेकिन ये जो दुआ मैंने खास बताया है इसको यकीन के साथ अगर आप पढ़ते हैं और दम करते हैं एवरी डे, आप इंशाअल्लाह ताला अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा देखेंगे। अपना आपका जो रिपोर्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो मैंने ये जो है मेडिकल स्टोरी मैंने आपको शेयर की है। उस लड़की ने ये सब कुछ जब किया, उसका रिपोर्ट एक बार नहीं 5 से 6 बार उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये चीज़ कैसे हो सकता है, कैसे ये चीज़ हो सकती है। डॉक्टर्स ने हर तरफ से मुझे यही कहा था कि नहीं हो सकता है, हो भी जाएगा तो दोबारा आने के चांसेस है, या फिर ये छोटा हो सकता है, ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स ने उनको कहा था। लेकिन जब उसने एक बार नहीं, और ऐसा नहीं है कि आज फिर कल फिर परसों, उसने आज करवाया, फिर महीने 1.5 महीने के बाद करवाया, फिर 2-3 महीने के बाद, इस तरह से उसने 5-6 अल्ट्रासाउंड करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके इस बीमारी का नामो निशान उसके जिस्म में बाकी नहीं था। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं आप भी थोड़ी सी वीडियो को छोटा बनाया करें। तो देखिए, मुझे मिरेकल्स स्टोरीज भी इसमें शेयर करनी होती है, मुझे टिप्स और वज़ाइफ भी देने होते हैं। आप मूवीज़ वगैरह जो है वो लंबे लंबे देख लेते हैं, लेकिन जो आपके काम की वीडियो होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटा बनाऊँ, लेकिन जो पॉइंट्स की बातें होती है वो बताना ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं चाहकर भी बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो को नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन आपके काम के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसे पूरा देखा करें, आपके फ़ायदे की वीडियो है। और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ऐसी मेडिकल स्टोरीज़ के लिए जो रियल होती हैं और टिप्स और वज़ाइफ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।